Good morning, class 8 students. In the last class, we talk about the chapter, the Indian Constitution. Sorry, I once again remind the chapter name. Chapter name is the Indian Constitution. We learn about why does a country need a constitution. We talk about Constituent Assembly. We talk about the time period. We talk about the Constituent Assembly peoples. We talk about the Nepal and their fight to democracy. Okay, and then we share story, and I told you to read the story. We read about also about Om Prakash Valmiki, and in a such manner dominance of one society. We explain inter-community dominations and intra-community dominations, and we learn about three significant reasons why we need a constitution. And after that we discuss the Indian Constitution key features that is much more important for us. We have to know about our constitution. What are our Indian Constitution key features? So I already told you the story behind the Indian national movement, the beginning, where the our great leaders and our freedom fighters create a path to constitute our constitution. Okay, under the British they had forced to obey rules, but after that they clearly mentioned their wishes how to create the constitution for our people, for our India. And we then also read about Baba Sahib Ambedkar, that is known the father of Indian constitution, and he is participating in the Constituent Assembly. Also he had made a law about the scheduled castes and tribes and many other things. Okay, so let's start from the key features. That is, first is federalism. Question arise here: what is federalism? What do you mean by federalism? So what is federalism? You have to uh, understand that this refers to the existence of more than one level of government in the country. What is federalism? The existence of more than one level of government in the country, that is central level government or a state level government. But in India there is also a third kind of government, that is Panchayati Raj. What is Panchayati Raj? The government that lie in the rural areas, that is called Sarpanch in Rajasthan, Pradhan in Uttar Pradesh. There is a Gram Panchayat, we vote for them and choose our representative, that is that called maybe Sarpanch or Pradhan. So you here learn about federalism. What is federalism? The existence of more than one level of government in the country. In India, we have government at the state level and the center. Panchayati Raj is the third tier of government, and you read sorry only or that, because this is the answer. Okay, what is federalism? First of all, question: one level of government in the country. India have government at the state level, at the central level, and Panchayati Raj is the third government. Okay, so India has three level of government. Okay, this is called federalism, the layers of government. Okay, the vast number of communities in India mean that a system of government need to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi. अब आप अपने आसपास जैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ कम्युनिटी बहुत सारी हैं, इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम हमें ज़रूरत है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो कि पर्सन ही कैपिटल सिटी में बैठे आके, हम उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे वहाँ पे एंड मेकिंग लॉ एंड मेकिंग डिसीजंस और लॉ फॉर एवरीवन। मतलब कुछ हम उन लोगों को चुन के दिल्ली ही भेजेंगे या हम जयपुर या लखनऊ भेजेंगे अपनी अपनी स्टेट असेंबलीज़ में, जो हमारे लिए फैसले ले सकें, जो हमारे लिए डिसीजंस ले सकें। इंस्टेड इट वाज इंपॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट सो दैट डिसीजंस कुड बी मेड फॉर द पर्टिकुलर एरिया। न्यू दिल्ली की बात हुई तो वो सेंट्रल लेवल की बात हो गई। ठीक है, आपने एमपी चूज़ किए फतेहपुर सीकरी से, भरतपुर से, आगरा से, और जो बड़े बड़े शहर हैं, जो एमपी जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, वो लोग तो दिल्ली बैठेंगे, उन पर्सन को हमने भेज दिया वो हमारे डिसीज़न लें।
बट स्टेट लेवल पे बात आएगी तब आपको क्या करना होगा, तब आपको वहाँ से जो एमएलए चूज़ करते हैं, आप विधायक लोग चूज़ करते हैं, वो आपके स्टेट असेंबली में आपके लिए वर्क करते हैं जाके। सो दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, स्टेट लेवल पे अलग, नेशनल लेवल पे अलग, और आपके गांव लेवल पे अलग। वाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉय ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर ऑन सर्टेन इश्यूज, हमारे यहाँ हर एक स्टेट ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब जो अपने आप में सेल्फ डिफाइंड है और सेल्फ पावरफुल है, खुद में उसकी ताकत सारी है, और वो कई सारे इश्यूज़ पे अपनी इस तरह की बातों को रखते हैं, गवर्न करते हैं, चीज़ों को लॉ बनाते हैं, और सब्जेक्ट ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर द ऑफ स्टेट्स फॉर द लॉ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब ऐसे सब्जेक्ट्स की बात आती है जो नेशनल कंसर्न के हैं, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो, गवर्निंग हो, आरबीआई की, या डिफेंस की बात हो, या इस तरह की बात हो, तो इन सब पे ये कहा जाता है कि इन स्टेट्स को फिर क्या करना चाहिए, फॉलो करनी चाहिए उन लॉ को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए। एक तरह से हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल होती है बट सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। जब आप 9th में आएंगे तो आप इन चीज़ों के बारे में और भी अच्छे से जानेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल द इशू इज दैट ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक्स लॉ इन। अब है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिस्ट बना रखी है उन सारे इश्यूज़ की जिस पे कि ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो है अपने लॉ बना सकती है। एक है बेटा सेंट्रल लिस्ट, जिसे यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं। दूसरी है स्टेट लिस्ट, जिस पे स्टेट लॉ बना सकता है। सेंट्रल यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क। और एक और होती है कॉन्करेंट लिस्ट, ये वो लिस्ट होती है जिस पे सेंट्रल और स्टेट दोनों मिल के वर्क करते हैं बेटा। और जब दोनों में से किसी की आपस में डिफरेंसेस या मतभेद हो जाएं तो सेंट्रल जो लॉ डिसाइड करेगी वही माना जाएगा। तो लिस्ट बांटने का मतलब है कि हमने पावर्स को अपने आप बांट दिया है ताकि हम एक दूसरे से लड़ें नहीं कभी। In addition, the constitution also specify where each tier of government can get the money from the work does it। यहाँ तक कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी स्पेसिफाई कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या नगर निगम पे या नगर पालिका जैसी गवर्नमेंट भी हो, चेयरमैन होते हैं, उनको भी जोड़ा गया है उसी में कि वो मनी कहाँ से लेंगे, कलेक्ट कहाँ से करेंगे, और फिर वर्क के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, सारी चीज़ मेंशन की हुई है, लिखी हुई हैं पहले से। अब आपको और हमको जब चीज़ें पता नहीं होंगी तो हमारे यहाँ के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो कैसे भी हमसे किसी तरह की बातें झूठ झूठ बोल के मीडिया न्यूज़पेपर में कह देंगे तो हम सच मान लेते हैं। जबकि लीडर्स हमेशा झूठ बोलते रहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और अपनी अपनी चीज़ें सही करने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हैं कि हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ एडमिट है, कहाँ लिखा गया है, स्पेसिफाई किया गया है कि नहीं किया गया। लेकिन हमारे यहाँ क्लियरली ये चीज़ें स्पेसिफाई की हैं। Under federalism, the states are not merely agent of federal government but draw their authority from the constitution as well। अब जब फेडरलिज्म की बात आती है ना तो स्टेट सिर्फ एजेंट नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के, बट वो पीछे भी हट सकते हैं। ऐसी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है, मतलब वो एक दूसरे से बंधे नहीं है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल द पर्सन इंडिया आर गवर्न बाय लॉ एंड पॉलिसी मेड बाय ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब हम जो इंडियंस हैं, जो लोग हैं, वो लोग हर तरह की लॉ और पॉलिसीज़ को मानेंगे जो ये ईच लेवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बनाती हैं, जो नगर निगम बनाता है या सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लिए बनाती है, हमें उनको फॉलो करना होता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं हमारे सामने। When the Constituent Assembly adopted the principle of universal adult franchisee, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है सब लोग को वोट देने का जो अधिकार है 18 साल से या उससे ऊपर के लोगों को। तो उस पर एक के अय्यर एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने कहा with an abundant faith in the common man and the ultimate success of democratic rule and in the full belief that the introduction of democratic government on the basis of adult suffrage will bring enlightenment and promote the well-being, the standard of life, the comfort and the decent living of common man। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज जो वोट देने का अधिकार हम दे रहे हैं, ये भरोसा है कॉमन मैन को कि वो अल्टीमेट सक्सेस प्राप्त करेगा डेमोक्रेटिक रूल में, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री बनने जा रहा था। और ये फुल बिलीफ है इस चीज़ का कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी एडल्ट सफरेज के दम पे एनलाइटमेंट मतलब जागृति लाएगी, प्रकाश लाएगी, उन्नति करेगी और प्रमोट बढ़ावा देगी वेल बीइंग को, किसको, इंसान के जो भले के काम है उनको, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ावा देगी, हमें आरामदायक जीवन देगी। कौन, यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी, वोट देने का अधिकार, और कौन, डेमोक्रेटिक रूल एंड डिसेंट लाइफ ऑफ द कॉमन मैन, और जो आम आदमी की ज़िंदगी होगी बहुत अच्छी होगी। ये एक ईयर ने बेटा स्टेटमेंट दिया था और ये सोर्स है।
ऑस्टिन जी 1996, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, क्लेरेंडन प्रेस ऑक्सफोर्ड, ये यहाँ से छपी हुई किताब है ऑस्टिन जी की, उसमें ये लिखा गया है। यानी कि सोशल साइंस में हमेशा सोर्स पे बात होती है कि कोई चीज़ कही भी गई है या नहीं कही गई है, या फिर आप कुछ भी बदल के कहीं से कुछ भी डाल दो। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ये फ़ोटो शो करता है एक असेंबली के चुनाव को, लोग वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं, तो ये वही बात कर रहा है। देखिए द फोटो बिलो शो द पीपल स्टैंडिंग इन द लाइन टू कास्ट। अब जब इतने सारे लोगों को वोट देने का अधिकार मिलेगा, लोग अपनी मर्जी से अपनी सरकार चुनेंगे। तो ये सारे राइट्स ब्रिटिश टाइम नहीं थे, बट हमने लेटर ऑन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ने, तो ये सारी चीज़ें उसमें क्लियरली मेंशन की गई। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म में होगी, ये भी मेंशन किया गया। द डिफरेंट ईयर ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट द कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हम लोग ही चुनते हैं उन सारे लोगों को। तो उसमें आपने कांता की स्टोरी सुनी थी कि वो वोट देने के लिए लाइन में खड़ी है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल आइडेंटिटी सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो हम सबको गारंटी देता है, वोट देने का अधिकार देता है। आपसे कोई वोट देने का अधिकार छीन नहीं सकता। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों को जिनकी एज 18 हो जाती है, 18 से ऊपर हो जाते हैं। When they were making the constitution, the member of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage, and this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. जब हमारे लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये बना रहे थे कानून, तो उन्होंने ये चीज़ महसूस की कि जितने स्ट्रगल से हमने फ्रीडम ली है, तो उससे एक माहौल तैयार हुआ है लोगों का कि वो वोट देने के अधिकार को पाएँ, और ये चीज़ उन्हें हेल्प करेगी, बढ़ावा देगी डेमोक्रेटिक माइंडसेट को। लोगों के अंदर एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट बनेगा, लोग सोचेंगे कि हाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छा है, वोट दे के हम किसी को पावर में ला सकते हैं, हटा सकते हैं। एंड ब्रेक द क्लचेज ऑफ, और किस चीज़ की बेड़ियों को तोड़ देगा? ट्रेडिशनल कास्ट, जो आप जाति भेदभाव मानते आए हैं, उच्च ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिए हैं, उनके सामने आप बैठ नहीं सकते, खा नहीं खा सकते, या आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ नहीं सकते, ये सारी चीज़ों से बाउंडेज हटा दिया। क्लास, जेंडर हिरार्की, जेंडर हिरार्की में इसलिए कहा जाता है क्योंकि महिलाओं को हमारे यहाँ हमेशा से बहुत सारी आज़ादी नहीं थी, लड़कियों को बहुत कम पढ़ाया लिखाया जाता था, तो वो सारी हिरार्की का मतलब जनरेशन वाइज जो इस तरह की चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। ये सोच के हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए सारी चीज़ें सोची थी, और वो उन्होंने वैसा ही बनाया और उसका उसी तरह से वर्क किया। सोचिए इतनी अच्छी भविष्य की नज़र देखने वाले लीडर्स थे हमारे, क्या आज ऐसे लीडर्स हैं हमारे पास? दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन द इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब ये सारी चीज़ों को, बेड़ियों को तोड़ने की बात है, तो वो कब तोड़ी है, कब? इसका मतलब क्या है कि हम सब डायरेक्टली मतलब रोल में प्ले करेंगे कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चूज़ करें, कैसे नहीं। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शंस। और हमारे हर नागरिक को हक है इस देश में कि वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से है, महिला है, पुरुष है, किसी कम्युनिटी से है, ये जाति भेदभाव है, किसी भी चीज़ से हो, वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। गरीब है, अमीर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस तरह की चीज़ें हमारे कंट्री में हमारे पूर्वजों ने हमें दी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमें दी। दीज रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल, और ये जो पीपल हैं जिन्हें हम चूज़ कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये अकाउंटेबल टू द पीपल। अकाउंटेबल का मतलब होता है लेखा जोखा देना, आंसर देना, लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। अगर आपके आसपास लीडर्स आपका विकास कार्य या जो बातें बोली गई वो नहीं कराते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं आपने क्यों नहीं किया, हिसाब किताब आप पूछ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग क्या सच में पूछते हैं, जबकि ये राइट्स हैं आपको। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें एक थर्ड फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब पावर को हमने सेपरेट कर रखा है। वो हम लेटरली अभी पीछे पढ़ ही चुके थे, सॉरी अर्लियर हमने पीछे पढ़ा भी था कि अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, उनको अलग अलग पावर है, बट और भी पावर्स को ऐड कर रखा है। जैसे मान लीजिए जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको अलग कर दिया है ना, गवर्नमेंट है उसको अलग कर दिया, जो अधिकारियों वाला लेवल है एग्जीक्यूटिव, उसको अलग कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हाट आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो उसका आंसर क्या है?
देर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर लेजिस्लेटर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो तीन तरह की गवर्नमेंट होती हैं बेटा, सॉरी ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। पहला लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर मतलब लेजिस्लेचर में ये लोग होते हैं जो एमपी वगैरह होते हैं, जो दिल्ली में बैठते हैं। स्टेट लेवल पे ये लोग असेंबली में बैठते हैं जिन्हें हम चूज़ करते हैं। द एग्जीक्यूटिव यानी कि इसमें वो लोग आते हैं जो शासन चलाते हैं, हेल्प करते हैं लीडर्स की, जैसे कि जो अधिकारी होते हैं, आईएएस होते हैं, पीसीएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आरएएस होते हैं। और एक लास्ट ऑर्गन है जुडिशरी, ये आपका न्याय प्रणाली है, जस्टिस सिस्टम। इसमें लॉ सिस्टम है आपका, जिसमें आपके हाई कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, दीवानी है, फौजदारी है, सुप्रीम कोर्ट है, जहां आप न्याय के लिए जाते हैं और न्याय मिलता है। अभी तीनों चीज़ें एक दूसरे से फ्री हैं कहीं ना कहीं, ख़ासतौर से जो जुडिशरी है वो तो सबसे ही फ्री है। जुडिशरी पे किसी का मतलब एक कहते हैं ना पावर है ना, उसको अपने अंडर कंट्रोल करना, वो नहीं है। क्योंकि जुडिशरी पे किसी का कंट्रोल हो जाएगा तो जो विधायक लेजिस्लेटर लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, लोगों को गलत यूज़ करते हैं, होता भी है, बहुत गलत यूज़ किया भी जाता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अलग अलग की गई हैं। द लेजिस्लेचर रेफर टू ओवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जैसा मैंने आपको कहा था, हमारे चुने हुए लोग यहाँ जाते हैं, इसे विधायिका बोलते हैं हिंदी में। द एग्जीक्यूटिव स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ एंड रनिंग द गवर्नमेंट। सरकार को चलाने वाले अधिकारी और लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 ऑफ द बुक। और जुडिशरी क्या है? जुडिशरी है रेफर टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन अ कंट्री, जो हमारे यहाँ कोर्ट सिस्टम है उसको रेफर करता है। द जुडिशरी रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री। ये जुडिशरी का है, ये लेजिस्लेटर का है और ये एग्जीक्यूटिव का है। तीनों ही चीज़ें अलग अलग तरीके से यहाँ पे दी हुई हैं। ये यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको मिलेंगे और आपको करने भी हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, कहीं ऐसा ना हो कि एक लोग किसी चीज़ का मिसयूज़ कर लें, जैसे लेजिस्लेटर है, विधायक एमपी लोग हैं, ये लोग मिसयूज़ भी बहुत करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से दैट ईच ऑफ दिस ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन तीनों की पावर अलग अलग है और तीनों अलग अलग तरीके से वर्क करेंगे। थ्रू दिस ईच ऑर्गन्स एक्ट एज अ चेक ऑन द ईच अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस एंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। इसमें यह भी कहा गया है कि हर एक जो ऑर्गन है, चाहे जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटर हो, वो एक दूसरे को चेक की तरह एक दूसरे को देखेगा कि हम एक दूसरे की सीमा में तो नहीं जा रहे हैं, एक दूसरे की पावर्स के अपोजिशन में तो नहीं आ रहे हैं, जिससे कि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। गवर्नमेंट अपना वर्क करेगी, जुडिशरी अपना वर्क अच्छे से करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना वर्क अच्छे से करें, तो तीनों में बैलेंस बना रहेगा और तीनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और कंट्री भी जो है अच्छे से चलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर हैं, बैठे हुए हैं, और ये कितना लिमिट होना चाहिए, कितना कंट्रोल होना चाहिए हर एक गवर्नमेंट को, जुडिशरी को, इस चीज़ के बारे में बात की है उन्होंने। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, द वर्ड स्टेट इज़ ऑफन यूज्ड इन चैप्टर दैट डज नॉट रेफर टू द स्टेट गवर्नमेंट। एक्चुअली क्या है, सिविक्स में या पॉलिटी की भाषा में अगर आप बात करेंगे ना, तो स्टेट का मतलब बेटा स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है। हम ये यूज़ करते हैं कि हम कहाँ रह रहे होते हैं, ठीक है, हम गवर्नमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जो पूरी गवर्नमेंट होती है, यानी इंडिया लेवल पे। स्टेट हमेशा पूरी इंडिया लेवल के लिए यूज़ किया जाता है पॉलिटी की भाषा में। हर सब्जेक्ट की कई बार थोड़ी थोड़ी अपनी अलग भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, उसमें स्टेट जो हम बोलते हैं बेटा, वो स्टेट हम बोलते हैं पूरी ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट के लिए, एक पूरे नेशन के लिए, पॉलिटी की भाषा में। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है हर एक चीज़ के लिए, लॉ के लिए, इलेक्शन में चेंज करने के लिए, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट जो है एक सॉवरेन मतलब पीपल कहता है। क्यों? क्योंकि हम एक डेफिनेट टेरिटरी में रहते हैं, हमारे इंडिया की एक डिफरेंट साइज़ और लोकेशन है, उसके अंदर हम रहते हैं, इसलिए हम उसको सॉवरेन बोलते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर हमारा ही हक ज़्यादा है, किसी अदर का नहीं। अगर हमारे कंट्री पे किसी और का हक होता पहले की तरह, ब्रिटिश की तरह, तो हम सॉवरेन नहीं होते, संप्रभु बोलते हैं उसे। ओके, यस, फंडामेंटल राइट्स की बात जब आएगी, ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे ये आपके राइट्स दिए हैं, 6 राइट्स के बारे में आपको यहाँ बात की जाएगी। मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अधिकार दिए हैं आपको, वो आपको अधिकार है और आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा उस चीज़ के लिए।
ठीक है। पहला है राइट टू इक्वलिटी। तो उससे पहले जान लें कि फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। पहले इधर देखेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैव ऑफन बीन रेफर्ड टू द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा गया है, आत्मा कहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा है। किसे कहा है? फंडामेंटल राइट्स को। क्यों कहा है? कॉलोनियल रूल के टाइम पे ऐसे बहुत सारे स्टेट्स थे और माइंड्स थे नेशनल्स के बीच में, जब ब्रिटिश थे उस टाइम की बात हो रही है, एंड दे वांटेड टू इंश्योर दैट अ सेट ऑफ रिटन राइट्स वुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। कि उन्होंने क्या फ़ैसला किया? उन्होंने फ़ैसला किया कुछ ऐसे रिटन राइट्स होने चाहिए जो कि बचाव कर सकें हर एक को, ताकि स्टेट पावर जो है इंडिया में मिसयूज़ ना कर सके अपनी पावर्स का। भाई ब्रिटिश करते थे तो ठीक है, करते थे, पावर तो चीज़ ही अलग है, कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। तो इंडिया में चीज़ें इंडिया के लोगों के ऊपर इंडियन लोग ना करें, इसलिए चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन की गई। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना, वो हमें बचाते हैं किस चीज़ से? कि हम पे कोई अत्याचार ना कर सके और कोई ऐसी ज़बरदस्ती पावर मतलब सरकार हम पे ना चला सके। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटी द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एलवेज द अगेंस्ट द इंडिविजुअल। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें ये चीज़ क्लियरली गारंटीड दी हुई है, इंडिविजुअल हर एक के कैसे कैसे राइट्स हैं और स्टेट जो है उनके खिलाफ किस किस तरह से व्यवहार करेगा, ये सब क्लियरली लिखा हुआ है। इसीलिए उसको कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। ध्यान रखना आप इसी चीज़ को, क्योंकि इस चीज़ को हमसे कोई नहीं छीन सकता। Moreover, the various minority communities also expressed the need for the constitution include right that would protect their group। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उनको भी ज़रूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की, क्योंकि वो अपने आप को बचा सकें, क्योंकि हमारे उनके साथ अत्याचार बहुत होता है हज़ारों सालों से। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर आल्सो गारंटी द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजॉरिटी। कि जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं कहीं माइनॉरिटी पे इस तरह के अत्याचार ना करे, तो उन चीज़ों के लिए गारंटी ली कॉन्स्टिट्यूशन ने। डॉक्टर अम्बेडकर हैज़ ऑल्सो सेट अबाउट दिस फंडामेंटल राइट्स। और डॉक्टर अम्बेडकर ने इन सारी चीज़ों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा, देयर ऑब्जेक्ट टू फोल्ड, उनके दो फोल्ड होंगे, मतलब उनके दो ऑब्जेक्ट होंगे। पहला, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजीशन एंड क्लेम दोज राइट्स। पहला ये कि हर एक सिटीजन को अधिकार मिले हैं और वो इस पोजीशन में होकर अपने राइट्स को क्लेम कर सके, कह सके कि ये अधिकार मुझे मिले हैं। और सेकंड ये, दीज राइट्स मस्ट बी ब्लाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉ। ये उन लोगों के लिए है जो एक दूसरे के ऊपर अथॉरिटी बनने की कोशिश करते हैं। और ही हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉ, जो लोग लॉ बनाते हैं। तो मतलब खुद अपने लिए आप या हम, आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ, मुझे अपने राइट्स मालूम है, आपको अपने राइट्स मालूम है। तो कहने का मतलब है हम एक दूसरे की अथॉरिटी में फिर एक दूसरे से ऐसे सामने आमने ना हो। हमें अपने लॉ के बारे में पता है और पावर है कि हम उस पर लॉ बना सकते हैं या नहीं बना सकते। मुझे पावर क्या है वो मुझे मालूम है, जो गवर्नमेंट को पावर मालूम है वो कर सकती है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट्स को ऑब्जेक्ट इज टू फोल्ड ही कहा। In addition to fundamental rights, the Constitution also a section called Directive Principle of State Policy। फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक सेक्शन जिसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो भी दिया। दिस सेक्शन वॉज डिजाइन बाय द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू एंश्योर ग्रेटर सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड टू सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉ एंड पॉलिसी दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ मासेस। गरीबी ख़त्म करने के लिए असेंबली ने इन चीज़ों को इस चीज़ में ऐड किया, ताकि सोशल लाइफ, गरीब अमीर पिछड़े आदिवासी सारे लोग, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब इकोनॉमिक लेवल पे हमारे यहाँ मनी फ्लो अच्छा हो, उस पर रिफॉर्म्स अच्छे कर सकें। तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इसमें ऐड किया। ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। पहले तो मैं आपको सिर्फ एक ही राइट के बारे में आज समझा पाऊँगा, फिर आपकी क्लास हम नेक्स्ट डे लेंगे, तब उसमें बाकी की चीज़ें समझाएंगे। मतलब ऑल पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ, सभी लोग कानून के बराबर हैं कानून की नज़र में। दिस मीन्स दैट ऑल द पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये है कि कंट्री में जो लॉ है वो सबको एक तरह से रक्षा करता है, सबकी सुरक्षा करता है, सबको बराबर मानता है। इट ऑल्सो स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स। इसका मतलब ये भी कि आप किसी को भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इस बेस पे कि उसका रिलीजन क्या है, उसकी जाति क्या है या उसका लिंग क्या है, महिला है, पुरुष है या किन्नर है, जो भी है।
एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड, होटल, शॉप्स, ईटीसी। हर किसी को अधिकार है कि वो पब्लिक प्लेस पे जा सके, चाहे वो प्ले ग्राउंड हो, होटल हो, शॉप हो। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नौकरी देने के नाम पे, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दे के नाम पे सरकार या स्टेट, जो सरकारें होती हैं, वो भेदभाव नहीं कर सकती हैं। बट देर आर एक्सेप्शंस टू दिस, और इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो आप लेटर ऑन पढ़ेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन एबोलिश्ड। जो छुआछूत की चीज़ें थी उनको भी ख़त्म किया गया, राइट टू इक्वलिटी को लाके। तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको सब कुछ देता है इस इंडिया में, इसलिए आप उन चीज़ों को समझें, अच्छे से देखें, और कभी भी मिसयूज़ ना होने दें और ना आपके साथ हो। आपको राइट्स पता होने चाहिए, आप सब बराबर। जाति, धर्म या लड़का लड़की या ट्रांसजेंडर के नाम पे किसी के साथ भेदभाव आपको भी नहीं करना है, और आपके साथ भी नहीं कोई कर सकता। ये राइट्स आपको पता होने चाहिए। आप शिकायत कर सकते हैं अपने बड़ों से, पुलिस में, कहीं भी। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपका कंट्री कैसा है, आपके यहाँ चीज़ें कैसी हैं। सो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।